Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about amplitude modulation. So basically, amplitude modulation is analog modulation technique, and in amplitude modulation, the information of the modulating signal is carried by amplitude variation of the carrier signal. So if I would like to define amplitude modulation, then amplitude modulation is the process in which amplitude of the carrier signal is changed according to instantaneous amplitude of the modulating signal. So this thing we have discussed in the last class, and we have also understood the concept of amplitude modulation graphically. Now today we will discuss amplitude modulation mathematically. It means that we will do the mathematical analysis of the amplitude modulation. So dear students, as we know, in any modulation we have three types of signals are used. Which are the three types? One is the carrier signal, which has very high frequency, so it is the high frequency carrier signal. So basically carrier signal is of high frequency. ओके, और कैरियर सिग्नल का रोल क्या होता है बच्चों? कैरियर सिग्नल का रोल होता है कि जो इंफॉर्मेशन सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करना, मतलब इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. सो हियर वी हैव डिफाइंड दिस कैरियर सिग्नल मैथमेटिकली. सो मैथमेटिकली we can define carrier signal as V of C sin 2 pi fct, where Vc is nothing but it is the peak amplitude of the carrier signal. So this is the peak amplitude. So basically this is the peak amplitude of the carrier signal, and Fc is nothing but it is the frequency of the carrier signal. So Fc is the frequency of the carrier signal. Okay, so this is basically sinusoidal signal, okay, whose amplitude, peak amplitude is Vc and carrier frequency is Fc. Now another signal that is used in modulation process, that is a modulating signal. So modulating signal is also known as a information signal or baseband signal, and it is also sinusoidal signal, as you can see, and its amplitude, peak amplitude is Vm. So Vm is the peak amplitude of the modulating signal. So this is basically peak amplitude of the modulating signal, and its frequency is Fm. Fm is the frequency of the modulating signal. So Fm is the frequency of this modulating signal, and as we know, the modulating signal has the low frequency and carrier signal has the high frequency. So it means that Fc is always much greater than Fm in modulation process. And after modulation, whatever the resultant signal that generated, that is basically known as a modulated wave. And here we have denoted the modulated wave as Vam of t. मतलब it is the Am stands for amplitude modulated, okay, and it is a function of time. It means that we are going to represent the mathematical, or we are going to represent the signals in the time domain. Okay, we will do the mathematical analysis of amplitude modulation in time domain. Okay, so when modulating signal is applied to the carrier signal, the amplitude of the output waves varies in accordance with the modulating signal. तो ये amplitude modulation में क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो amplitude modulation में क्या होता है, मतलब जो हमारा जो ये modulated wave होगा Vam of t, उसमें क्या होगा कि जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, ओके, Vc, दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेटेड वेव. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव है वो हमारा कैरियर सिग्नल ही है, लेकिन वो कैसा कैरियर है? मॉडिफाइड कैरियर है. कैसा कैरियर है? मॉडिफाइड. उसमें मॉडिफिकेशन किस में हुआ? तो मॉडिफिकेशन किसमें हुआ बच्चों? उसके एम्पलीट्यूड में, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में मॉडिफिकेशन हुआ. ओके, किसके हिसाब से?
अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल। सो बेसिकली दिस इज जो यहाँ पे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है कैरियर सिग्नल का, वो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है। कैसा है? अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है। दिस इज द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज द कैरियर सिग्नल इन ओरिजिनल फॉर्म और ओरिजिनल कैरियर। आफ्टर मॉड्यूलेशन क्या होगा? ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटेड, मतलब मॉडिफाइड कैरियर हो जाएगा। मॉडिफिकेशन किस में होगा? ये पार्ट जो है sin 2π fct एज इट इज रहेगा, सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड में मॉडिफिकेशन आएगा। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। समझ में आ गया बच्चों? तो चलो देखते हैं कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो ये आपका आउटपुट मॉड्यूलेटेड वेव है। तो एज वी नो कि आउटपुट मॉड्यूलेटेड वेव होता है वो हमारा कैरियर सिग्नल ही है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा कैरियर सिग्नल ही है, sin 2π fct है, कैरियर सिग्नल ही है। लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड था, ओके, EC, यहाँ पे बेसिकली VC लिखा है, लेकिन आप EC भी लिख सकते हो। यहाँ पे EC कर दो, चलो EC और यहाँ पे EM। सो इट वुड बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एट दिस इज लेट्स से EM ऑफ t और VM ऑफ t, दैट्स फाइन। तो ये कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड EC है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड EM है। तो EC इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल एंड EM इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो AM सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो मेरा कैरियर सिग्नल ही है, लेकिन मॉडिफाइड कैरियर है। मॉडिफिकेशन किसमें हुआ? तो ये पार्ट जो है sin 2π fct, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। किसमें मॉडिफिकेशन हुआ? देख सकते हो आप कि उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका वो चेंज हो रहा है। किसके हिसाब से? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज EM sin 2π fmt। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज हो रहा है, वो मेरा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। वेरी सिंपल। सो दिस इज द आउटपुट मॉड्यूलेटेड वेव। सो मैथमेटिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैन बी गिवन एज VAM of t is equal to in the bracket EC plus EM sin 2π fmt into sin 2π fct। तो अगर मैं उसको अच्छे से समझूं, ये एक्सप्रेशन को अगर हम अच्छे से समझे, तो ये मेरा कैरियर सिग्नल ही है। तो आप देखते हो कि कैरियर सिर्फ उसमें किसमें चेंज आया? उसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आया। किसके हिसाब से? दैट इज कैरियर सिग्नल इज एडेड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, दैट इज ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल EM ऑफ t है। सपोज मैं इसको डिनोट करूँ EM ऑफ t से, तो ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दैट इज EM sin 2π fmt। नाउ व्हाट इज EC? EC इज नथिंग बट इट इज अ पीक कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड, मतलब कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड। व्हाट इज EM? EM इज द पीक वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। व्हाट इज FC? FC इज द carrier signal frequency and what is FM? That is the modulating signal frequency or information signal frequency. And very important to note, that is FC is always much greater than FM. That is carrier signal frequency is always higher than the modulating signal frequency. Okay, समझ में आ गया? So ये हमारे amplitude modulated wave का expression है। ओके, ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन हम ऐसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन फर्दर। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है मॉड्यूलेटेड वेव का, उसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, फर्दर उसको हम थोड़ा मैथमेटिकली एक्सपांड करते हैं। सो VAM ऑफ t क्या हो जाएगा? EC 1 प्लस, अब क्या किया मैंने इसमें से? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा ये जो सिग्नल, लेट मी राइट डाउन, लेट मी ट्राई टू राइट डाउन। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या है? मैं ट्राई कर रहा हूँ। VAM ऑफ t इज इक्वल टू क्या है बच्चों? इन द ब्रैकेट ये मेरा कैरियर सिग्नल ही है, तो ये मेरा कैरियर सिग्नल है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है? मेरा कैरियर सिग्नल है। और कैरियर सिग्नल कौन सा है? sin 2π fct है। ओके, और इसका पीक एम्पलीट्यूड कितना है? एज वी नो EC है, पीक एम्पलीट्यूड EC है। और उसके एम्पलीट्यूड में मॉडिफिकेशन आता है सिर्फ किसके हिसाब से आता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है? EM sin 2π fmt। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप देख सकते हो ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, वो मेरा कैरियर सिग्नल है, मॉडिफाइड कैरियर है। मॉडिफिकेशन किस में आया है? उसके एम्पलीट्यूड में, अकॉर्डिंग टू
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉमन ले लेता हूँ, ये जो टर्म है उसमें से इसी को कॉमन ले लो। तो इसी को अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो EM डिवाइडेड बाई EC साइन 2 पाई FMT इंटू साइन 2 पाई FCT। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या किया मैंने, सिर्फ ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था AM का उसमें से इसी को कॉमन ले लिया। तो इसी को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में 1 प्लस EM डिवाइडेड बाई EC साइन 2 पाई FMT इंटू साइन 2 पाई FCT। एंड ये जो टर्म है EM डिवाइडेड बाई EC, ये जो रेशियो है उसको हम बोलते डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं स्मॉल m से तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, VAM ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल m साइन 2 पाई FMT इंटू EC साइन 2 पाई FCT। ओके, तो ये इसी को यहाँ पे लिख दिया और कुछ नहीं है। तो और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिखेंगे तो भी चलेगा। दैट इज VAM ऑफ t इज इक्वल टू EC इन द ब्रैकेट 1 प्लस m साइन 2 पाई FMT इंटू साइन 2 पाई FCT। एंड ये जो स्मॉल m मैंने लिखा है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज बेसिकली नॉन एज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है उसको हम नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करते हैं, लेकिन टाइम बिंग ये जो स्मॉल m है वो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। और ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस एक्सप्रेशन इज द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। और ये जो फॉर्मूला है और ये जो इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस इक्वेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो वो कैसे आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम बीइंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो हमें मिला वो आपको दिमाग में फिट कर देना। ये फाइनल एक्सप्रेशन है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, VAM ऑफ t। तो VAM ऑफ t क्या है, वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव is mathematically given as EC, that is a peak amplitude of the carrier signal, EC in the bracket 1 plus small m sin 2 pi FMT into sin 2 pi FCT. Okay, and small m is known as a modulation index. तो ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया? ओके, नाउ इफ वी डिस्कस दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन डिटेल, सो व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हमने डिफाइन तो कर दिया, बोल तो दिया कि ये स्मॉल m मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, लेकिन ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या रोल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर दैट, व्हाट इज m, दैट इज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड व्हाट इज इट्स एक्सप्रेशन। सो बेसिकली m इज नथिंग बट इट इज द EM डिवाइडेड बाय EC। It is basically EM divided by EC. What is EM? What is EM? EM is nothing but it is the peak amplitude of the modulating signal. What is EC? Peak amplitude of the carrier signal. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड एंड कैरियर सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड का रेशियो लेंगे तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कोएफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, लेकिन उसका फेमस नाम है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिफाइन क्या करता है? So basically it is denoted by small m, okay, and is also known as a modulation index. Let me write it over here. It is also known as a modulation index. Okay, तो एग्जाम में न्यूमेरिकल में कोई भी नाम हो सकता है इसका। आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोल सकते हैं वो लोग, और कोएफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलेशन भी बोल सकते हैं। दोनों चीज सेम है, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, तो ये कोएफिशिएंट मॉड्यूलेशन है क्या और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है? So modulation index or coefficient of modulation is used to describe amount of amplitude modulation or amplitude change present in AM waveform. मतलब it basically defines the amount of modulation. It defines simple अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो modulation index is the measure of modulation. Measure of
modulation or it defines amount of amplitude variation or amplitude change present in AM wave. Okay, आप कुछ भी बोल सकते हो. So what is modulation index? Modulation index is used to define amount of modulation or it is used to describe amount of amplitude change that is present in the AM waveform. मतलब आपका जो AM waveform है, let me show you that AM waveform. ये AM waveform जो है, ये अपना modulated wave है, उसमें कितना amplitude variation आया है, उसका जो मेजरमेंट है और वो जो टर्म है मेजरमेंट करने का, जो आपका पास जो टर्म है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स. तो इसमें मॉड्यूलेटेड वेव में कितना एम्पलीट्यूड वेरिएशन है उसका जो मेजरमेंट है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मैथमेटिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. ओके, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स और कोएफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम इज इक्वल टू EM डिवाइडेड बाय EC. EM क्या है? पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. व्हाट इज EC? पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. तो आप देख सकते हो EM इज द पीक एम्पलीट्यूड और पीक चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म और EC इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव. ओके, एंड M represents the, this is small m, not okay, capital M है, sorry, it is capital M, that is another quantity. So small m is the modulation coefficient or modulation index. और ये जनरली इन द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मॉड्यूलेशन. मतलब जब भी उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की लैंग्वेज में हम डिफाइन करते हैं तो उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं. किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज. तो अगर मुझे इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो. तो m मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज अ परसेंटेज मॉड्यूलेशन. तो आपको जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिला है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज मॉड्यूलेशन. मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हमने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट किया. ओके, सो दैट इज m मल्टीप्लाई बाय 100. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. द वैल्यू ऑफ ideally the value of modulation index should always lies between 0 and 1. तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? तो m की वैल्यू 0 and 1 के बीच में होती है. याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ गया व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स. एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स हैज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. याद रखो, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और उसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है. और कैसे वो इफेक्ट करता है वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स डू दी लेट्स डिराइव द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द M, EM एंड EC. तो हमने जो मॉड्यूलेशन M डिफाइन किया, तो मॉड्यूलेशन M क्या है? M इज इक्वल टू EM डिवाइडेड बाई EC. मैथमेटिकली हमें पता है, लेकिन ग्राफिकली ये तीनों के रिलेशन के बारे में अगर मुझे समझना है तो ये वेवफॉर्म है. तो वेवफॉर्म से हम समझने की कोशिश करते हैं. तो EM क्या होता है बच्चों? दैट इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, आप देख सकते हो. ये मेरा जो मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ ब्लू कलर से, देखो ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग ब्लू कलर का. और एक दूसरा कलर लेने की कोशिश करता हूँ मैं. ओके, तो आपको पता चल रेड कलर से मैं डिनोट करता हूँ. दैट इज द रेड कलर से ये जो सिग्नल है मेरा, ये मेरा कैरियर सिग्नल है. तो आप देख सकते हैं कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से. तो ये मेरा रेड कलर का जो वेवफॉर्म है वो मेरा कैरियर सिग्नल है, आप देख सकते हो. दिस इज माय कैरियर सिग्नल. और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? अकॉर्डिंग टू द ब्लू वेवफॉर्म. ब्लू वेवफॉर्म कौन है? वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से मेरा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है. वो क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है. ओके, तो ये मेरा जो रेड कलर का है वो मेरा कैरियर सिग्नल है. अब मुझे M, EM एंड EC का रिलेशन फाइंड करना है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन M, EM, EC. तो बच्चों देखो कि ये जो मेरा ब्लू कलर का वेवफॉर्म है उसकी रेफरेंस लाइन ये है. ये जो रेफरेंस लाइन है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन नहीं आई, ये जो रेफरेंस लाइन है वो मेरे ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रेफरेंस लाइन है. मतलब ये जीरो ग्राउंड लाइन है उसकी. तो
उसका पीक एम्पलीट्यूड कितना होता है वेव फॉर्म का, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड कितना होगा? लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ओके, दूसरा एक कलर यूज करता हूँ, लेट से हाँ ये ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड है दिस इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इतना जो है वो पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो EM इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। और कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड कितना होगा बच्चों? तो कैरियर सिग्नल कौन सा है, उसका रेफरेंस लाइन कौन सा है कैरियर सिग्नल का? ये कैरियर सिग्नल है। सो दिस इज माय कैरियर सिग्नल रेफरेंस लाइन, ग्राउंड लाइन। सो दिस इज बेसिकली 0। ओके, तो कैरियर सिग्नल, और कैरियर सिग्नल कौन सा है? ये मेरा कैरियर सिग्नल है रेड कलर का। तो उसका पीक एम्पलीट्यूड कितना होगा बच्चों? लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ओके, सो इट विल बी मोर क्लियरर टू यू। ओके, तो ये जो पूरा एम्पलीट्यूड है वो मेरा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा, बिकॉज कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड रेड वेवफॉर्म का पीक एम्पलीट्यूड कहाँ पे? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ तक, यहाँ ये इस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। सो दिस इज माय EC, दैट इज पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, दैट इज EC। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा क्लियर कर लो। ये पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल और पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है EM। ओके, बेसिकली नाउ तो अगर हम सॉरी ये नहीं होगा, लेट इट्स माय मिस्टेक, वेरी सॉरी। ये पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव है, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था ना, वो पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव है। दिस इज पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, बिकॉज ये मॉड्यूलेटेड वेव है, पूरा ये मॉड्यूलेटेड वेव। लेकिन कैरियर सिग्नल कहाँ तक है? यहाँ तक। तो पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल ये होगा, दिस इज द EC, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। सो दिस इज द EC, एंड ये पूरा जो है दैट इज पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड, बिकॉज ये पूरा मॉड्यूलेटेड है, तो उसका पीक एम्पलीट्यूड कौन सा है? ये। और कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड कौन सा होगा? तो ये कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा मॉड्यूलेटेड वेव है उसका पीक एम्पलीट्यूड कितना हुआ? तो ये पूरा उसका पीक एम्पलीट्यूड है। ओके, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूं, सपोज मान लो कि Vmax से, किससे रिप्रेजेंट करूं? Vmax। सो Vmax इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो आप देख सकते हो कि Vmax इज नथिंग बट इट इज द EM प्लस और EM प्लस EC। सो दैट इज द EM प्लस EC, बिकॉज यहां से लेके यहां तक EC है और यहां से लेके ऊपर EM है, और ये पूरा क्या है? मेरा Vmax है। ये क्या है? Vmax। तो बेसिकली ग्राफिकली यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि Vmax इज इक्वल टू EM प्लस EC। सिमिलरली ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड जो है वो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मिनिमम एम्पलीट्यूड है, उसको हम बोलेंगे Vmin। क्या बोलेंगे? Vmin। तो Vmin क्या होगा? Vmin इज नथिंग बट इट इज द EC माइनस EM, दैट इज द EC माइनस EM। तो आप देख सकते हो ग्राफिकली कि कैरियर सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड का हम डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो मिनिमम एम्पलीट्यूड Vmin इज इक्वल टू EC माइनस EM एंड Vmax इज इक्वल टू EC प्लस EM। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज याद रख लो। ओके, समझ में आ गया? फिर से Vmin that is the minimum amplitude of the modulated signal, amplitude modulated wave, and Vmax is the peak amplitude or the maximum amplitude of the amplitude modulated wave। तो ये दोनों याद रखो, Vmax is equal to EM plus EC and Vmin is equal to EC minus EM। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं। तो अगर मुझे EM और EC Vmin एंड Vmax के फॉर्म में चाहिए, अब मुझे क्या करना है? EM का फॉर्मूला और EC का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के पीक एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के फॉर्म में चाहिए। इट मीन्स दैट आई वुड लाइक टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ EM एंड EC इन टर्म्स ऑफ Vmax एंड Vmin। तो कैसे मिलेगा ये दो फॉर्मूला से? तो ये दो फॉर्मूला को अगर मैं ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, तो अगर ऐड करूंगा तो क्या होगा बच्चों? एक साइड क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूं, ये दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? Vmax प्लस Vmin। क्या हो जाएगा? Vmax प्लस Vmin हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या होगा? EM प्लस EC प्लस EC माइनस EM। तो EM कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 2 टाइम्स EC। तो कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड Vmax एंड Vmin के फॉर्म में क्या मिलेगा? EC इज इक्वल टू Vmax प्लस Vmin डिवाइडेड बाई 2। Vmax प्लस Vmin डिवाइडेड बाई 2, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली फॉर्मूला फॉर द EM,
ओके, इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स एंड वी मिन। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 का सब्सट्रैक्शन लेंगे। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये वी मैक्स इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, वी मैक्स माइनस वी मिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड इसी कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टाइम्स EM बचेगा। तो EM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EM इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइडेड बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, EM बराबर वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मुझे कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड वी मैक्स एंड वी मिन के फॉर्म में चाहिए तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड करो, और अगर मुझे EM का फॉर्मूला और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला वी मैक्स और वी मिन के फॉर्म में चाहिए तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। तो मुझे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिले, उसको भी याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। उससे भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, और वो कैसे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। समझ में आ गया? ओके, नाउ सो बेसिकली यू कैन सी, तो मेरा अगर मुझे ये दोनों एक्सप्रेशन मिल गए EM और EC के, तो मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक्सप्रेशन वी मैक्स और वी मिन के फॉर्म में क्या होगा वो हम देखते हैं। सो व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स एंड वी मिन, तो क्या होगा, EC और EM हमें पता है दोनों का फॉर्मूला। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स M इज इक्वल टू EM डिवाइडेड बाई EC, वो हमें पता है, EM डिवाइडेड बाई EC। और EM का फॉर्मूला हमारे पास है, तो EM की जगह पे 1/2 वी मैक्स वी मिन लिखो, और EC की जगह पे वी मैक्स प्लस वी मिन लिखो 1/2। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, M इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइडेड बाई वी मैक्स प्लस वी मिन। और उसको अगर मुझे परसेंटेज में डिफाइन करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज द परसेंटेज मॉड्यूलेशन इन टर्म्स ऑफ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ modulated wave. So this is the maximum amplitude of the modulated wave, this is the minimum amplitude of the modulated wave. तो ये चीज, ये नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोटेशन की में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, EM क्या है, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल। EC क्या है, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। एंड Vmax क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और मॉड्यूलेटेड वेव। एंड Vmin क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। समझ में आ गया? ओके, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट वी हैव टू डिस्कस। तो बच्चों, EM और EC मॉड्यूलेशन इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ EM एंड EC। सो M इज इक्वल टू EM डिवाइडेड बाई EC। सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ EM एंड EC वी हैव 3 केसेस। डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ EM and EC we have 3 cases. What are the 3 cases? First case is that EM is less than EC. EM less than EC. This is the first case. मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड से कम है। तो उस केस में अगर EM EC से कम है तो M की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। यस और नो, M की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और M की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो इसको हम बोलेंगे अंडर मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे, अंडर मॉड्यूलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज अ अंडर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन। और अंडर मॉड्यूलेशन जब होगा तो वेवफॉर्म कैसा मिलेगा, वो यहाँ पे पिक्चराइज है। सो दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द अंडर मॉड्यूलेशन इन विच EM की वैल्यू EC से वैल्यू से कम है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे EM की वैल्यू EC से हाफ है, दैट इज EM इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई 2। सो इन दैट केस वी आर गेटिंग द वेवफॉर्म समवट लाइक दिस। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो दिस द फर्स्ट केस when EM less than EC, that is known as under modulation, and in that case we are getting the value of M is less than 1, M की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ओके, और इस केस में हमें ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा। नाउ सेकंड केस, वैल्यू ऑफ EM इज इक्वल टू EC। EM की और EC की वैल्यू सेम है, मतलब पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल दोनों सेम है। सो उस केस में M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 1। और जब M की वैल्यू 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे, परफेक्ट मॉड्यूलेशन। सो दिस द कंडीशन फॉर परफेक्ट मॉड्यूलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज 100% मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको, 100% मॉड्यूलेशन, मतलब परफेक्ट मॉड्यूलेशन है।
no problem. Okay, so when EM is equal to EC, that M is equal to 1 and that is results in 100% modulation. Okay, तो ये जो ग्राफ है D वो परफेक्ट मॉड्यूलेशन का ग्राफ है. तो आप देख सकते हो उसमें EM इज इक्वल टू EC है, EM इज इक्वल टू EC है, मतलब पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड, ये पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये पोर्शन, और कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड, ये दोनों सेम टू सेम है, ये EC है और ये EM है, ये वाला EM है, और दोनों की वैल्यू सेम है. तो EM इज इक्वल टू EC, दैट इज अ परफेक्ट मॉड्यूलेशन. ओके, एंड परफेक्ट मॉड्यूलेशन में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव हो जाएगी 2 टाइम्स EC एंड उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0. आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, ये मिनिमम वैल्यू 0 है. ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल दैट इज Vmin इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल दैट इज Vmax इज इक्वल टू 2 टाइम्स EC. आप ये फॉर्मूला में रखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा. ओके, समझ में आ गया? डन. मतलब Vmax और Vmin का जो फॉर्मूला है ये EM प्लस EC, EC माइनस EM. तो Vmin इज EC इज इक्वल टू EM होगा, तो ये क्या हो जाएगा, Vmin 0 और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स EC. ओके, वेरी गुड. ओके, समझ में आ गया. और थर्ड केस है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ EM एंड EC. थर्ड केस EM इज ग्रेटर देन EC, EM ग्रेटर देन EC. तो जब EM ग्रेटर देन EC होगा दैट इट मीन्स दैट M इज ग्रेटर देन 1. M की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1. ओके, जब ये केस जो है M ग्रेटर देन 1 उसको हम बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन. क्या बोलते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन. दैट इज नोन एज अ ओवर मॉड्यूलेशन. ओवर मॉड्यूलेशन दैट इज नोन एज अ ओवर मॉड्यूलेशन. फिर से लिखता हूं यहाँ पे, ओवर मॉड्यूलेशन, दैट इज नोन एज अ ओवर मॉड्यूलेशन. ओके, एंड इन ओवर मॉड्यूलेशन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट डिस्टॉर्शन. ओके, मतलब जब भी M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उस केस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है. सो इफ यू वुड लाइक टू अवॉइड डिस्टॉर्शन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव देन वैल्यू ऑफ M शुड ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज जो डिफाइन की थी कि दैट इज M की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए. अगर 1 होगी तो वो परफेक्ट मॉड्यूलेशन है, अगर वो लेस देन 1 होगा तो वो अंडर मॉड्यूलेशन है, मतलब उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा. बट अगर M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में डिस्टॉर्शन होगा, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी. ओके, इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. सो whenever we are doing modulation, amplitude modulation, we must have to take care that the value of M should always be between 0 and 1. समझ में आ गया? डन. ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. आई होप कि आज हमने जो भी कंसेप्ट डिस्कस किया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स स्टॉप हियर. वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन in our next video lecture. Thank you very much.